Okay. सर्जिकल एंडोडोंटिक्स। तो सर्जिकल एंडोडोंटिक्स जो है दैट इज द एंडोडोंटिक्स नॉन सर्जिकल और सर्जिकल जो कन्वेंशनल मेथड है that is your non-surgical endodontics. When you surgical endodontics means there's something uh, giving incisions and raising flap and doing surgery. So that is something we can do in endodontic as well. And there are certain conditions where we need to do the endodontic surgery. So where we need to do this endodontic surgery, what are the indications and what are the different techniques and methods of surgical endodontics, तो वो थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे in this lecture. The procedure which we performed, what we call them surgical endodontic procedures, were incision for drainage when there is acute apical abscess that needs to be drained, and again that is somehow a surgical procedure. And periradicular surgery, what we call the episectomy, when we need to raise the flap and expose the root end, and we need to cut the root end, and then we fill the root end, and that is called the episectomy, and retrograde filling, that we call periradicular surgery. Root imputation or root resection. So when there is a problem in one root while the rest of the roots are intact, in that condition we need, despite to remove all the tooth, we can save the half of the tooth or the remaining roots by removing that root which cannot be saved. So that is we call the root imputation or root resection. Mostly this procedure is performed in multi-rooted teeth and maxillary molars where there are three roots. So one root can be removed or sometimes two roots even can be removed. One term we call the hemisection. Hemisection mostly performed in the mandibular molar, which have two roots. So one root is removed and one is left. So that hemi means a half, and half tooth is removed and half is intact. So that is hemisection. Bicuspidization is bicuspid tooth, as we call premolar. Have two cusp. That's why it's called the bicuspid. So bicuspidization again of molars, we only separate them two halves, while both halves are left, none is removed. So, but they are separated. So that procedure we call the bicuspidization or premolarization. So these are the some procedure surgery, and they have different indication of these procedures and the clinical condition where we need to do these procedures. For example, incision for drainage, as we discussed in endodontic emergency as well, that when there is acute apical abscess due to the endodontic problems, no doubt the non-surgical endodontic should be performed because the source of the abscess is pulp, necrotic pulp mostly, and that pulp should be removed and canal should be disinfected, and that source could be controlled, and then the rest of the abscess can be drained by giving the incision in the soft tissue, mostly that over the जो swelling है, and to drain the pus or exudate जो उसमें भरा हुआ है, that relieve the pressure and discomfort and to promote the healing as well. For example, this is acute apical abscess, intra oral, that intraoral swelling that needs to be drained, and then you have to give the incision to drain the pus. In case of diffuse swelling, when there's a cellulitis and rapidly growing, the mostly we don't give the incision, and the patients are kept on antibiotic, systematic antibiotic,
and must sometimes as hospitalization as well to just to reduce the swelling, and then we can go for other procedure which may include the incision. But in these initial stage of the cellulitis, which is more progressing, diffuse, then the incision for drainage may be avoided. Yeah, in our anatomical spaces, what we call the Ludwig angina, in these cases again, a patient needs to be hospitalized and should be kept on a systematic antibiotic to reduce the uh, swelling and infection. Then the rest of the endodontic procedure should be performed. Our patients some have a hematological disorders when the chances of the bleedings are high, and these cases should be again are done in a hospital environment to to face if there is any emergencies appear, or especially bleeding after incision. So in hospital arrangement can be easy for that case. For here, you can see that acute abscess cellulitis case, a very diffusing swelling involving this this left half of the face. You can see here due to this mostly a canine infection, which is a long root, and that may lead to the swelling involving the eye as well. In this case, the incision should be avoided, and still patients को आप एंटीबायोटिक दे दें, उसकी swelling reduce हो जाए, फिर प्रोसीजर कर लें. समटाइम्स जैसे मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है in these cases. Again, a case with the space involvement, and these cases again needs to be the higher dose of antibiotics and hospitalization to reduce the swelling, and then the endodontic treatment is performed. A Ludwig angina case of bilateral space involvement, and this is again a very emergency condition because bilaterally space are involved, raising the tongue and closing the airway, and this could be a life-threatening condition. So in this case, a very hospitalization, antibiotic, and all that required. Procedure of incision for drainage, you may go for local anesthesia because soft tissue anesthesia should be achieved in the incision and then drain it. So incision should be given over a more fluctuant area that induce the you know pus discharge from the, and when you give the incision, pus, sometime blood is coming, and just reducing the swelling and relieving the discomfort, and जो जैसे मैंने कहा कि हीलिंग को promote करता है. So this is all purpose of giving incision for drainage. Here you can see that with the you can aspirate it, it can irrigate it with normal saline uh, of that cavity of abscess cavity after drainage. And नीचे एक फिगर में दिया गया है कि एक ड्रेन डाल दें. ये इसमें रबर डैम का एक बना के उन्होंने रख दिया इसमें कि इट शुड बी पेटेंट, और इसमें फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स. अगर हम इसको ऐसे ओपन छोड़ देंगे तो वो क्लोज हो जाएगी, एंड अगेन चांसेस कि वो एब्सेस दोबारा बन सकती है कैविटी. और मोस्ट चांसेस कम होते हैं अगर आपने पल्प साफ कर दिया है, कैनाल साफ कर दिए हैं और उसमें इंट्रा कैनाल मेडिकेमेंट्स दे दिए, तो chances of the recurrence of abscesses are reduced. But then if even that, the incision की जो opening है उसको आप थोड़ा सा open ही रखें for 24 hours. Now जो मेन टॉपिक है आज का हमारा वो है पेरीरेडिकुलर सर्जरी, जिसको हम एपिसेक्टमी भी कहते हैं. This surgery is performed to remove the portion of the root, or what we call the एपिसेक्टमी. Apexectomy is apex को remove कर रहे हैं हम with, and to retroseal the canal or retrograde
एक आर्थोग्रेड फिलिंग होती है जो कोरोनल फिलिंग्स करें हम, कोरोनल जो भी कैनाल ओपनिंग करते हैं और कैनाल क्लीनिंग करते हैं और ऑब्चुरेशन करते हैं, ऑल दैट इज योर आर्थोग्रेड. रेट्रो मीन्स बिहाइंड. तो एपेक्स को काट देंगे एंड ओपेक्स को सील कर देंगे, दैट वी कॉल रेट्रो सील और द रेट्रोग्रेड फिलिंग. When a complete seal cannot be obtained with orthograde through the crown approach. So sometimes there are the problem to do the orthograde conventional जो root canal treatment है, then we need this procedure, एपिसेक्टमी. तो उसको अपेक्स को हम काट देते हैं और रेस्ट ऑफ द टूथ जो है रूट है उसको रहने देते हैं. तो वैसे अपेक्स को काटने से क्यों हम एपिसेक्टमी को प्रोमोट करते हैं? फॉर एग्जांपल अगर एक पेरीएपिकल लीजन है, आपने रूट कैनाल कर दिया है, you have died that lesion cannot heal, sometimes a larger here a lesion or some cystic lesion as well. So हम रेड सर्जरी कर रहे हैं एंड ओनली वो रिमूव कर दें हम lesion को, why we need to remove the apex? जी कोई बताएगा इसमें? सर एपेक्स इस वजह से रिमूव करते हैं क्योंकि असल इनिशिएशन जो इन्फ्लेमेशन का है या कोई इन्फेक्शन का है वो एपेक्स की वजह से हो रहा है. क्यों तो एपेक्स को ऐसा क्या क्योंकि है अपेक्स पल्प में? सर पल्प से जो भी इन्फेक्शन होता है वो थ्रू एपेक्स स्प्रेड करता है पीडियल्स में मतलब सराउंडिंग टिश्यूज में. इस वजह से वन ऑफ द कॉमन पाथवे है. ठीक है, कोई और इसमें? अच्छा, अपेक्स को जैसे एक शुरू में हम लेक्चर पढ़ा था, इंटरनल एनाटॉमी ऑफ द रूट ऑफ कैनाल. उसमें मैंने आपको बताया कि मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो एरिया है कैनाल में वो अपेक्स है, क्योंकि अपेक्स में जो फॉर एग्जांपल लेटरल कैनाल्स हैं, तो लेटरल कैनाल्स भी ज़्यादातर एपिकल पार्ट में होते हैं. तो रूट का पार्ट, कोरोनल पार्ट, मिडल पार्ट एंड एपिकल पार्ट. तो लेटरल कैनाल्स को हम देखें कि लेटरल कैनाल्स आर मोस्टली इन द अपेक्स. एंड व्हाट आर दीज लेटरल कैनाल्स जो लेटरली स्प्रेड करते हैं फ्रॉम मेन कैनाल एंड टुवर्ड्स पेरोडोंशियम. तो लेटरल कैनाल्स को साफ करना नॉट मैकेनिकली नॉट पॉसिबल. उसको इरिगेशन हम करते हैं और इरिगेशन की अंदर इरिगेंट जाता है और उसको साफ करता है, और दैट इज़ अ डिफ़िकल्ट जॉब इवन. तो लेटरल कैनाल्स को साफ, उसमें टिश्यू होते हैं, पल्प होता है, उसमें नेक्रोटिक टिश्यू होते हैं, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, ऑल दैट. तो लेटरल कैनाल्स आर मोस्टली इन एपिकल पार्ट. उसके बाद स्तमस की हम बात कर रहे थे कि स्तमस जो है जो बिटवीन टू मेन कैनाल में कम्युनिकेशन होती है. फॉर एग्जांपल मीजियल रूट ऑफ मैंडिबुलर मोलर, उसमें मीजियल रूट में दो कैनाल्स होती हैं, एक लिंगुअल कैनाल और एक बकल कैनाल. उन दोनों के बीच में भी कोई इंटरनल कम्युनिकेशन होती है कोई कैनाल के थ्रू, दैट वी कॉल स्तमस. तो स्तमस भी ज़्यादातर एपिकल पार्ट में होते हैं. दूसरी होती है एपिकल रेमिफिकेशंस और एपिकल डेल्टास, जिसमें मेन कैनाल्स डिवाइड हो जाता है इन डिफरेंट ब्रांचेस, तो वो भी एपिकल पार्ट में ज़्यादा हो जाता है. और जो तो ये सारी चीज़ें अपेक्स की एनाटॉमी इज मच कॉम्प्लिकेटेड. तो मेन कैनाल को तो हम साफ कर लेते हैं, मगर अपेक्स पे आके और जो लेटरल कैनाल्स हैं, स्टमसिस हैं, रेमिफिकेशंस हैं, ऑल दीज थिंग्स, और समटाइम्स नॉट पॉसिबल. और इरिगेंट जो है वो भी कैनाल, मेन कैनाल इरिगेट कर देते हैं, मगर इरिगेशन की जो फ्लो है एट अपेक्स वो बहुत स्लो होती है, एंड समटाइम्स वो सफिशेंट इरिगेंट नहीं पहुंच पाता है एपिकल एरिया में, और दैट्स वाई. तो वहाँ remnants of the bacteria and canal remnants can be left, and that could be a source of the continuous infection or reinfection sometimes. So the apex को काट देते हैं इसलिए.
यहाँ आप देखें, ये एक केस है और यहाँ लियन है। इसकी देखें एपिसेक्टमी पर हो चुकी है, अपेक्स इज रिमूव्ड, आप देख लेंगे अपेक्स शॉर्ट है, रिमूव। एंड जो ओपेसिटी आपको नजर आ रही है एपिकल एरिया में, दैट इज रेट्रोग्रेड फिलिंग, उसको सील कर दिया गया है, और द रेस्ट ऑफ द कैनाल को अगेन सील कर दिया गया है। आफ्टर फ्यू months or years, you can see here a lesion is well healed, okay, and that is a successful episectomy in this tooth. सो नॉन सर्जिकल रूट इंडिकेशंस क्या हैं जहां हम सर्जरी एडवाइस करते हैं? आजकल जो एंडोडोंटिक है, जो नॉन सर्जिकल एंडोडोंटिक है, इट्स अ क्वाइट सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल एंडोडोंटिक के चांसेस बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं, मगर जो है वो भी हैं। और नॉन सर्जिकल एंडोडोंटिक में रोटरी हम यूज़ कर रहे हैं। इरिगेशन की जो है डिफरेंट जो मेथड्स आ गए हैं, तो इरिगेशन और रोटरी एंडोडोंटिक, ऑल दैट मेक मोर सक्सेसफुल रूट कैनाल। तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि वी नीड टू डू द सर्जिकल एंडोडोंटिक, बट इवन देयर आर द चांसेस एंड देयर आर द कंडीशंस जहां हमें वी नीड टू परफॉर्म द रूट कैनाल ट्रीटमेंट। So retreatment of failed root canal therapy is not possible, or would not produce a better result. Sometimes there is a continuous जो patient की जो complaint है वो continue हो, और that cases भी हम सर्जरी करते हैं जहाँ बायोप्सी इंडिकेटेड हो। जैसे मैंने कहा कि लीयंस आर लार्जर लीयंस में भी बायोप्सी इज रिक्वायर्ड होती है, तो वहाँ फिर हमें सर्जरी करनी पड़ती है। रूट एनाटॉमी देखें, यहाँ बहुत सीवियर किस्म की डायलिसरेशंस हैं। इन दिस केस ऑर्थोग्रेड रूट कैनाल या नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल, तो उसकी हम फिर एपिसेक्टमी कर देते हैं। अच्छा, यहाँ कोई बताएगा कि इस केस में क्या नजर आ रहा है आपको? सर परफोरेशन हुई है, किस दांत में? ये जो मिडल वाला है सर, फर्स्ट मोलर। फर्स्ट मोलर का हो ना? फर्स्ट हाँ, मोलर के डिस्टल रूट, सॉरी सर, फर्स्ट मोलर के डिस्टल रूट में उसने कौन लगाई सी हुई है, पोस्ट लगाई हुई है? तो इसमें परफोरेशन कहाँ पोस्ट है? लगाई है, पोस्ट लगी हुई है ना? दिखा डिजिटल में पोस्ट लगी हुई है, डिस्टल में है या किसी और के नाल में? देखो, तो डिजिटल में ही है। विजुअल में भी थोड़ी बहुत नहीं, मैक्सिलरी visual मोलर में है ना? मैक्सिलरी मोलर है ना ये? यस सर, Yes, sir. मैक्सिलरी मोलर है। रेडियल डिस्टेंस है मीजियल कैनाल के सामने। पैलेटल में है। तो पैलेटल में नहीं ढालेंगे। भाई वो तो Palatal अभी में पोस्ट किस में डालेंगे वो मैं वो बता देता हूँ, मगर अभी कहाँ नजर आ रही है आपको? डिजिटल में आइडिया हो रहा है जो थोड़ा बता बहुत। डिस्टल पे आइडिया हो रहा है। जिसने कहा कि मीजियल रूट पे रेडियोलिसेंसी है, वो भी सही है। मीजियल रूट को देखें प्री मोलर की साइड पे, उसके वो बिल्कुल सर, मीजियल रूट पे आपको रेडियोलिसेंसी नजर आ रही है। सर, ये डिस्टल रूट, ये मेरा ये एरो को देखें, ये डिस्टल रूट है, और ये इसमें आपको एक ऑब्चुरेशन सी एक लाइन नजर आती है, ओपेसिटी। हम्म, जो ये रेडियो, और ये डिस्टल रूट है, ये मीजल रूट है। और मैक्सिलरी मोलर में अगर आप राइट एंगल पे एक्सरे ले रहे हैं, तो आपको मीजल जो पैलेटल रूट है वो बिटवीन टू रूट्स होगी, ठीक है ना? पैलेटल रूट जो होती है, तो दिस इज द पैलेटल रूट जो बिटवीन टू रूट्स रहती है। हाँ, फ्रैक्चर के चांसेस नहीं होंगे पैलेट के ज्यादा, अगर हम पोस्ट में लगा के ज्यादा प्रेशराइज देंगे पैलेट को। पोस्ट बड़ा होता, पैलेटल रूट बड़ी होती है इसलिए हम देते हैं उसमें। हाँ, यस। तो ये मैं अभी ये बता देता हूँ। तो ये जो पोस्ट है ये पैलेटल रूट में है, और मैक्सिलरी मोलर में पोस्ट पैलेटल रूट कैनाल में ज़्यादातर हम डालते हैं, क्योंकि पैलेटल कैनाल इस वाइडर कैनाल, अगर आप मैक्सिलरी मोलर की बात करें तो मीजियल और डिस्टल और पैलेटल, तो पैलेटल कैनाल स्ट्रेट भी होती है ज़्यादातर इन कोरोनल एरिया, एंड वाइडर भी होती है।
तो ये मोस्टली पोस्ट अगर लगाना है तो पैलेटल में लगाएं। और मैंडिबुलर में अगर कंपेयर करें कि डिस्टल और मीजियल में 2 कैनाल्स होती हैं तो नैरो होती है, डिस्टल में मोस्टली 1 कैनाल होती है तो वाइडर होता है, तो डिस्टल में हम मोस्टली पोस्ट इंडिकेट करते हैं। वैसे तो कोई ऐसा नहीं है कि कहीं भी किसी भी कैनाल में, बट मोस्टली यूजुअली पैलेटल इन मैक्सिलरी एंड डिस्टल एंड मैंडिबुलर। मगर यहाँ पोस्ट का मसला नहीं है, पोस्ट इज ओके। और क्या मसला नजर आ रहा है यहाँ? सर एब्सेस नजर आ रहा नीचे। एब्सेस नजर नहीं आता रेडियोग्राफ पे, वो क्लिनिकल नजर आता है, क्योंकि एब्सेस मतलब स्वेलिंग वगैरह। स्वेलिंग रेडियोग्राफ पे कैसे नजर आएगी? रेडियोलिसेंसी नजर आ रही है, जिसने कहा कि मीजियल रूट के ऊपर रेडियोलिसेंसी है। सही है वो। क्यों है वो? रूट कैनाल की गई है पेशेंट को, बल्कि इस पे क्राउन भी लगा हुआ था क्योंकि रिड्यूस हुआ है उसको। पेशेंट को कंप्लेन हुई, पेन हो रहा था, तो क्राउन को हटाया गया और रेडियोग्राफ लिया गया। तो ये रेडियोग्राफ है आपके सामने। व्हाट इज योर डायग्नोसिस एंड व्हाट इज योर ट्रीटमेंट प्लान? बताओ। सर जिस जो मीजल रूट है जहाँ पे रेडियोलिसेंसी है, यहाँ पे एपेक्टोमी करेंगे। और वो तो इसके करेंगे, चलो एपिसेक्टमी आप करेंगे, क्यों करेंगे? ये इसकी ऑब्जर्वेशन हुई है, और उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्यों फेल सर हुआ है? कोरोनल सर एपेक्स परफोरेट हुआ, कोरोना एपिकल सी नहीं है, एपिकल सील नहीं है इसमें। रूट डाइवर्ज हो रही है थोड़ी, तो शायद दूसरी रूट भी हो, एक्सेसरी एक्सेसरी कैनाल रूट केनाल, मिस्टर केनाल मे मिस बी। कैनाल हो सकती है। वेरी गुड मिस। मोस्टली इन मीजियल मैक्सिलरी रूट, जो मीजियल मैक्सिलरी मोलर में मीजियल रूट में 2 कैनाल हो सकती हैं, जिसको MB2 कहते हैं। तो MB2 के चांसेस होते हैं कि MB2 हो और वो मिस हो गया हो, और ज्यादातर वो मिस होता है और फेल हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है जो इस रेडियोग्राफ में नजर आ रहा है आपको? अब अपेक्स को देखें और कोरोनल पार्ट को देखें, तो अपेक्स पे ये एक कोरोनल में थोड़ी बहुत रेडियोल्यूसेंसी है सर। है। क्राउन पोर्शन में ये जो इधर आपका पॉइंटर है इधर पे, यस सर, ये नहीं, ये क्योंकि ये थोड़ी सी डेंटिन है, और ये जो मटेरियल है थोड़ा ज्यादा ओपेक है, तो उसका थोड़ा शेडो नजर आ रहा है, अदरवाइज इज ओके। यहाँ आप देखें जी। अपेक्स पे जो लाइन ये नजर आ रही है, ये मेरा एरो देखें, ये कुछ ज्यादा ही ओपेक नजर नहीं आ रही है आपको? यस सर, थोड़ी सी। हाँ सर, ये क्या है? ये क्या हो सकता है? सर ये फाइल है। ये फाइल है। वेरी गुड। ये इस ब्रोकन फाइल, ब्रेकेज हो गया। ब्रेकेज हो गई। ये सेपरेटेड हाँ। फाइल है जो अपेक्स पे ब्रेक हुई है, और वो रिमूव नहीं हुई, और उसने जो रिमेनिंग जो कोरोनल पार्ट कैनाल का सील कर दिया था। अब ये फाइल यहाँ देखें कि यहाँ थोड़ा सा कर्व भी है रूट, और ये बियॉन्ड द कर्वेचर फाइल, और इसकी लेंथ देखें अच्छी खासी है। तो ये है, और इसमें ये पोस्ट लगा हुआ हो, और ये रेडियोलिसेंसी मीजियल रूट को इन्वॉल्व कर रही है, और पेशेंट को कंप्लेन है। अब आप मुझे बताएं कि ट्रीटमेंट प्लान क्या करेंगे इसका। अब ट्रीटमेंट प्लान आप 3 ऑप्शंस में आपको अभी बता देता हूं कि दांत रिमूव कर देंगे, एक्सट्रैक्शन करें आप, रीट्रीटमेंट करें, रूट कैनाल दोबारा करें आप, या आप सर्जिकल एंडोडोंटिक या एपिसेक्टमी करें आप। तीनों ऑप्शंस में आपका कौन सा बेहतर ऑप्शन नजर आ रहा है यहाँ, और क्यों? एक मरतबा रीट्रीटमेंट करेंगे, फिर अगर रीट्रीटमेंट रीट्रीटमेंट से करेंगे, असर नहीं आप हुआ, इसको रीट्रीट करेंगे। एक मरतबा रीट्रीटमेंट करेंगे सर, रीट्रीटमेंट अगर में क्या सक्सेस हुआ। चैलेंजेस आपको फेस करेंगे इसमें रीट्रीटमेंट में? रीट्रीटमेंट सर यही इसकी जो एथियोलॉजी है, जो एपेक्स पे इसमें फाइल पड़ा हुआ है ना सर, अपेक्स में फाइल पड़ा हुआ है, उसको आपने निकालना है, ठीक है ना? ये यस सर। क्योंकि यही सोर्स है, अगर फाइल नहीं निकला तो फायदा तो होगा नहीं। रीट्रीटमेंट जब भी करते हैं तो तीनों कैनाल्स की ही हम करेंगे, ठीक है ना? एक कैनाल की नहीं, तो ऑल द कैनाल। तो इसको पोस्ट लगा हुआ है, फिर पोस्ट को निकालना भी एक चैलेंजिंग होगा यहाँ, ठीक है ना? तो पोस्ट निकालते हुए भी कभी हम रूट को डैमेज कर लेते हैं। तो
और ये कैनाल में से फाइल निकालना और एन एपिकल पार्ट, और वो भी थोड़ी रूट कर्व है, तो वो समटाइम्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल ठीक है, तो ये चैलेंजेस हैं जी रीट्रीट में। अदरवाइज और जब रूट कैनाल फेल होता है तो पहला जो नेक्स्ट होता है कि हम रीट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, कि वी डू द रीट्रीटमेंट, नॉन सर्जिकल रीट एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट। ठीक है, नॉन सर्जिकल। मगर अगर देखते हैं कि कोई ऐसी किस्म की चैलेंजेस हैं कि रीट्रीटमेंट जो है वो सही तरीके से नहीं रिजल्ट दे पाएगा, लाइक इन दिस केस, तो बेटर कि हम थर्ड ऑप्शन को वो करें कि गो फॉर सेकंड ऑप्शन को, कि सर्जिकल एंडोडोंटिक कर लें। ठीक है, और सर्जरी भी समटाइम्स अगर कहें कि प्रॉब्लम है, तो थर्ड थर्ड जो स्टेज होगी वो आप कहें कि आप रिमूव कर दें। और रिमूवल में जब आते हैं तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि पूरा दांत रिमूव करें, एक रूट रिमूव करें, लाइक दिस। ठीक है, चले जी रीट्रीटमेंट में तो चैलेंजेस आ गई कि ये आपका जो है वो पोस्ट लगा हुआ है, फिर कैनाल में जो फ्रैक्चर्ड इंस्ट्रूमेंट है वो बियॉन्ड अप्रोच है, वो रिट्रीव होना इट्स नॉट पॉसिबल। और sometimes we may very damage to the रूट को थोड़ा सा हम कैनाल को कोरोनली वाइड करते हैं, फिर जो अंदर रिट्रीवल की जो पूरी किट रहती है वो यूज करते हैं ताकि वो कैन और रिट्रीव कर पाए सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को, तो क्या रूट डैमेज हो सकती है और आखिर में आपकी जो है फ्यूटाइल एफर्ट हो और वो निकले भी ना। अच्छा चलिए, जो थर्ड सेकंड ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन ये था कि हम रीट्रीटमेंट करें, हमारे चैलेंजेस ये, थर्ड ऑप्शन ये है, सेकंड ये है कि हम सर्जरी करें। ठीक है, एपिसेक्टमी करें। तो सर्जरी एपिसेक्टमी में कोई चैलेंज नजर आ रही है आपको यहाँ? यस सर। क्या? यस, साइनस। साइनस साइनस, वेरी गुड। कि मैक्सिलरी साइनस जो है इट्स वेरी क्लोज टू दिस रूट, एंड व्हेन यू डूइंग दिस एपिसेक्टमी एंड सर्जिकल यू कैन एक्सपोज और डैमेज द मैक्सिलरी साइनस की जो लाइनिंग है। वेरी गुड। चले, अगर ये एक समटाइम्स भी हो और पेशेंट इस पे राजी ना हो कि मेरा मैक्सिलरी साइनस ओपन हो जाए, तो थर्ड ऑप्शन आप इसको क्या देंगे? एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन देंगे। फिर फायदा क्या? फिर फायदा क्या? हम तो दांत बचाने वाले हैं, निकालने वाले तो नहीं है भाई। राइट। ठीक है, सर अगर कोई और ऑप्शन हो तो फिर यहाँ सही हम है। आपको बताते हैं कि दांत को कैसे बचाया जाए, उखाड़ना है तो सर में जाओ। और सर्जरी वाले सर ये आपको रूट बताएंगे कि दांत कैसे निकाला जाता है ना। सही बात। हाँ, हम बचाने वाले हैं, तो बचा सर सकते हैं इसको कट इसमें। किया जाता है। ये आप इसको मीजियल रूट को काट दें, मीजियल यस रूट सर। निकाल दें, पैलेटल और हम्म। डिस्टल रूट को आप सेव कर सकते हैं, और वो इंटैक्ट है पूरी उनका टूथ स्ट्रक्चर। तो यू कैन सेव द पैलेटल रूट एंड डिस्टल रूट, जिसको हम कहते हैं रूट रिसेक्शन, एम्पुटेशन। एम्पुटेशन करेंगे मीजर रूट को निकाल। हालांकि आइडियली जो है एम्पुटेशन और रूट रिसेक्शन जो है मैक्सिलरी मोलर में, वो डिस्टल रूट को निकाल देते हैं हम, और डिस्टल रूट की कुछ छोटी रूट होती है, इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर मीजियल रूट को भी वैसे निकाल सकते हैं, और स्टिल जो है आपका पैलेटल और डिस्टल रूट की से काम चल सकता है। तो ये भी ऑप्शन है कि आप मीजियल रूट को निकाल दिया जाए, और रेस्ट ऑफ द टू रूट्स हैं उसको सेव करके यू कैन डू, आप उसको चला सकते हैं। तो और जो आखिरी सर ऑप्शन, जी हाँ जी। सर जब हम एपेसेक्टोमी नहीं कर सकते कि हमें साइनस के एक्सपोजर का खतरा है, तो हम फिर सर एक पूरी रूट कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्योंकि रूट एक्सट्रैक्शन भी तो एक सर्जरी प्रोसीजर है, इसमें भी तो वही रिस्क है जो एक नहीं, उतने एपेसेक्टोमी में है। इतनी रिस्क नहीं है जितनी एपिसेक्टमी में है ना, क्योंकि एपिसेक्टमी में आप फ्लैप देंगे, तो उसके ऊपर जो बोन है, जब बोन हम रिमूव करते हैं रूट को एक्सपो, तो उसमें चांसेस होते हैं कि आपका जो डैमेज हो जाए, साइनस ओपन हो जाए, या जो लियन को जब हम क्यूरेट करते हैं, जो लियन है आपका,
तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि मैक्सिलरी साइनस ओपन हो जाए, ठीक है ना। जबकि एक्सट्रैक्शन में तो आप निकाल देते हैं मोस्टली और वो हील हो जाता है, इतनी इतनी पेरिएपिकल हमें चीज़ें नहीं करनी पड़ती, जिसमें एपिसेक्टमी में ज़्यादा हमें करनी पड़ती है। तो चांसेस होते हैं, वैसे आप दांत निकालते हैं उसमें ओपन हो जाता है, मगर कम होते हैं। ये क्लोज एक्सट्रैक्शन होता है सर जो हमें हेमिसेक्टमी जी करते ये हैं। क्लोज और नहीं सर्जिकल होगा, मगर हम इसको सेपरेट करेंगे कोरोनल एरिया पे ना। अपेक्स पे तो इतना हमें जी कोई बोन रिमूव करने की ओवर द एपिकल पार्ट, एपिसेक्टमी जब हम करते हैं ना तो अपेक्स को ओपन करना होता है हमें। तो अपेक्स के ऊपर जो बिल्कुल सर, बोन बिल्कुल। होती है उसको रिमूव करते हैं टू एक्सपोज द अपेक्स। तो उसमें रिमूवल में एपिकल अपेक्स को काटने में, फिर एपिकल क्यूराटेज करने में, ऑल दैट देयर आर द मोर चांसेस कि आप ओपन करें, आप उसको मैक्सिलरी साइनस की लाइनिंग डैमेज हो जाए। चलें ये देखें, ये सेम केस है, क्या हुआ प्रोसीजर? एम्पुटेशन, रूट रिजेक्शन। नो, रूट तो पड़ी हुई है, एपिसेक्टमी हो सर एपी एपिसेक्टमी एपिसेक्टमी कर दी गई है इसकी, यहाँ पे फिर से। ठीक है। हाफ तो ऑफ सर ये द तो वही केस है ना, आप बे सेम नहीं केस है करेंगे ना, इसको? ये सेम केस है, यही था केस, ठीक है। इसका जो जी भी सर। पार्ट था जो व्हिच कंटेन द सेपरेटेड इंस्ट्रूमेंट, उस पूरे पार्ट को रिमूव कर दिया गया और रूट लंगड़ी हो गई। इसमें देखिए हाफ ऑफ द रूट, मोस्टली मोर देन हाफ ऑफ द रूट को सेव किया गया है। और यहाँ देखें रूट में इसको हम क्या सॉरी ये रेट्रोग्रेड फिलिंग की गई है और ये रिमेनिंग रूट है, ठीक है ना। तो एपिसेक्टमी प्रोसीजर परफॉर्म किया गया, वो रूट को एपिकल पार्ट जो जिसमें फाइल पड़ी हुई थी वो पूरा रिमूव करके रेस्ट ऑफ द रूट को सील कर दिया गया, ठीक है। तो दिस प्रोसीजर द कैन सेव द टूथ स्ट्रक्चर। अच्छा ये केस है एक और, पेशेंट की कंप्लेंट जो क्लिनिकल केस अब देखें, ये एक कह रहे हैं कि ये दाना बना हुआ है मेरा काफी महीनों से, इसमें से कभी पस आती है, कभी फ्लूइड आता है, ये है। आपने एक्सरे ले लिया, एक्सरे ये है, प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस क्या है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है, बताओ। जी सर ये सर केनाइन में रेडियोलेसेंसी थोड़ी सी, दोनों के रूट पे थोड़ी सी रेडियोलेसेंसी आ रही है। पेशेंट बता रहा है कि मैंने कोई 1-1.5 साल पहले ये डेंटल ट्रीटमेंट करवाया था, रूट कैनाल्स करवाई थी, ब्रिज लगवाया था, इंटीरियर ब्रिज लगा हुआ है, तो ये सारा कुछ है। ये दाना क्यों बन रहा है, इसकी क्या साइनस, साइनस सर है, ये क्रॉनिक क्रॉनिक, डायग्नोसिस क्या है, क्रॉनिक पेरियोपाइकल एब्सेस। क्रॉनिक पेरिएपिकल एब्सेस, वेरी गुड, ठीक है। दिस इज अ क्रॉनिक पेरिएपिकल एब्सेस है, ड्रेनिंग साइनस बना हुआ है एक्स्ट्रा ओरल, और ये कंप्लेंट है। आपने रेडियोग्राफ लिया है, आपको नजर आ रहा है कि 2 रूट कैनाल हुई है, एक K9 की और एक प्रीमोलर की, और दोनों फेल नजर आ रही है, रेडियोलिसेंसी नजर आ रही है आपको। आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सोर्स क्या है इस साइनस का? गटा पर से पॉइंट डाल के देखें। चलें गटा पर टेट्राइन ट्रेस करने से सीधा आके K9 टिप पे रुक रहा है वो, रूट अपेक्स ऑफ द K9। ट्रीटमेंट क्या करेंगे आप? सिर्फ पोस्ट और उसके बीच में गैप है जीपी पॉइंट के। ओके, फीड सही नहीं हुआ पोस्ट और बाकी कैनाल सही सील हुआ है? नहीं सर, मिडिल थर्ड में पता नहीं क्या हो रहा है, गैप है थोड़ा सा। मिडिल थर्ड पे गैप है, मगर जो एपिकल पार्ट भी सही तो सील नहीं हुआ, वाइड्स वगैरह नजर आ रहे हैं, हाँ सही। ठीक है।
लेटरल और जो आपका जो ये है लेटरल है वो भी सही नहीं हुआ। कर्वेचर पे नहीं हुआ। जी, अब बताएं कि ट्रीटमेंट क्या होगा आप इसका। रीट्रीटमेंट करें। K9 को रीट्रीटमेंट करेंगे। चैलेंजेस क्या है रीट्रीटमेंट पे? पहला ऑप्शन तो इस पे बेस्ड है कि रीट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि रीट्रीटमेंट यहाँ आप देखें कि जो क्वालिटी ऑफ रूट कैनाल है वो सही नहीं है, पुअर है, तो रीट्रीटमेंट इसमें बिल्कुल ऑप्शन बनता है। मगर रीट्रीटमेंट में क्या आपके हैं यहाँ प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस? ये ब्रिज रिमूव करेंगे सर तो इससे कोरोनल पोर्शन फ्रैक्चर हो सकता है एक, जी और दूसरा ये है कि जो वो पोस्ट हम रिमूव करते हैं उसमें भी आपने कहा कि फ्रैक्चर के चांसेस बहुत होते हैं। जी, क्योंकि इसका ब्रिज लगा हुआ है ब्रिज लगा हुआ है जो ऐसा। यहाँ K9 एज अबटमेंट ऑफ द ब्रिज है और उसमें पोस्ट लगा हुआ है, सो अगेन रीट्रीटमेंट थोड़ा सा यहाँ चैलेंजिंग है, मगर रिस्की। आइडियल इट शुड बी रीट्रीटमेंट। मगर उसमें भी आप इसको अगर आप यहाँ देखें कि इसकी एपिसेक्टमी की गई है, सेम वही K9 है, लेटरल को दोबारा भर दिया गया है और K9 को एपिसेक्टमी कर दी है। लेटरल में हमने रीट्रीटमेंट किया कि वो लेटरल में रीट्रीटमेंट करने इज इजी, इसमें कोई इस तरह से नहीं है प्रोसेस लगा हुआ या ऐसा कोई, तो रीट्रीटमेंट करें इसका और उसको एपिसेक्टमी किया गया है। ये एपिसेक्टमी करके और इसको रीट्रीटमेंट कर दिया गया, और ये देखें फिर कुछ दिनों के बाद गायब हो गया आपका साइनस। सही है? यस सर। यस ठीक है ना? नहीं सर दोनों की ट्रीटमेंट क्यों हुई? ये कहाँ पे हमारा जीपी पॉइंट रुक रहा था? व्हाई डिड वी डिसाइड नहीं टू वो लाइक आप चलो K9 का प्रॉब्लम था, मगर लेटरल भी तो सही नहीं भरा हुआ ना, सही? तो एहतियातन लेटरल भी कर। एहतियातन आप कर उसको भी कर लें, क्योंकि वो भी आइडियली नहीं हुआ ना, उसकी कोरोनल सील भी सही नहीं है। कोरोनली देखें यहाँ, ये दोबारा इसको कैरीज शायद कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी तो फेल्यूर की तरफ जाएगा, और तो इससे बेहतर है कि दोनों को आप ट्रीट एक कर साथ। दें। ठीक है ना? तो इसमें आप यू कैन सी नाउ बेटर रिजल्ट्स यू विल गेट, और उसका प्रोसेस भी बच गया, ब्रिज बच गया, और पेशेंट को रिलीफ मिल गया जो उसका प्रॉब्लम था। ठीक है ना? अगर ये अब K9 आपका ये नहीं होता एज अबटमेंट इसका और ब्रिज को, और तो रीट्रीटमेंट इज बेटर ऑप्शन। समटाइम्स अगर इसमें पोस्ट ना लगा हुआ होता और इवन इट इज अबटमेंट और सिर्फ क्राउन लगा हुआ होता, तो थ्रू क्राउन भी हम इसको रीट्रीटमेंट ही कर देते। ठीक है ना? मगर बिल्कुल लिहाजा पोस्ट लगे हुआ है और पोस्ट को रिमूव करना क्वाइट, और ब्रिज को फिर प्रॉब्लम हो जाता, क्योंकि पोस्ट रिमूव होगा तो रीट्रीटमेंट होगा। ठीक है ना? तो ये देखें लार्ज, यहाँ क्या नजर आ रहा है आपको? एक्सरे भी है, ओपीजी भी है इसका। बड़ा रेडियोलिसेंसी। रेडियोल्यूसेंसी इज बहुत लार्जर है। इसकी ट्रीटमेंट अगर हम कर भी लें इसका, तो चांसेस ये अगेन लेटरल इन्वॉल्व है इसका, और लेटरल इंसाइजर, और उसमें पूरा इट्स बिग रेडियोल्यूसेंसी, लार्ज रेडियोल्यूसेंसी, तो इन दैट केस इट्स मोस्टली अ सिस्टिक, एंड आप करेंगे इसमें हम नॉन सर्जिकल रूट कैनाल ट्रीटमेंट, मगर जो हीलिंग ऑफ दैट बिग लीजन इज क्वाइट, जो चांसेस हैं बहुत कम है, तो it's better to go for episectomy, removing the root apex and removing this cystic lesion with your root canal treatment। तो ये देखें, ये भी ब्रिज का है और इसमें एपिसेक्टमी की गई है। ये यहाँ आप देखें कि सीलर एक्सट्रूड हुआ है और रूट कैनाल भी ठीक नहीं हुई, पोस्ट लगा हुआ है, तो इसमें भी ये देखें कि एपिसेक्टमी करके सीलर को रिमूव कर दिया गया है। रूट कैनाल इसकी हुई है रेट्रोग्रेड और सही है, आर्थोग्रेड जो नॉन सर्जिकल है, मगर सीलर इतना एक्सट्रूड हो गया तो उसको हमने सर्जिकली रिमूव किया। यहाँ आप देखें क्या नजर आ रहा है इस दांत में? परफोरेशन। परफोरेशन।
अब एपिकल परफोरेशन अपेक्स से गटा पर्चा बाहर है, और क्या बाहर नजर आ रहा है? रेडियोलिसेंसी भी है तो इसमें। हाँ, फाइल ये क्या है? नहीं अब आप फाइल और गटा पर्चा को डिफरेंशिएट कर पाए, ये राइट साइड पे ये ठीक है ना? डिस्क जो पड़ा लेकिन हुआ है सर, फाइल ये जो होती है वो ये थिन और ज्यादा और स्ट्रेट मोस्टली, और opaque उसमें आपको बहुत ओपेसिटी ज्यादा ओपेक होता है कंपेयर टू गटा पर्चा, ठीक है ना? राइट। और ये देखिए गट्टा पर्चा क्योंकि वो ज़ाहिर है फ्लेक्सिबल होता है तो उसकी आप देखिए, मगर ये बिल्कुल एक स्ट्रेट, तो ये ओपेक आपको ज़्यादा नज़र आएगा। तो ये कंपेयर आप करें विथ डिफरेंट प्रैक्टिस कि दिस इज़ अ फाइल और इट इज़ अ गट्टा पर्चा। तो ये एक तो गट्टा पर्चा भी बाहर है और फाइल भी बाहर टूटी हुई है, ठीक है ना? तो ज़ाहिर है यहाँ से फाइल को निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो सर्जरी आपको करनी पड़ेगी। ये भी एक्सट्रूडेड है मटेरियल, सर्जरी बिल्कुल करनी पड़ेगी। सो सर हाँ जी, सर मैंने एक जगह पे पढ़ा था ना या सुना था कि जितना सर एक डेंटिस्ट से अपाइकली फाइल या फ्रैक्चर हो जाए या परफोरेट हो जाए, इट इज कंपैरेटिवली बेटर देन जितना कोरोनली फ्रैक्चर हो जाता है। ये सही बात है सर? जी क्यों? कि वो कह रहे थे कि जितना मतलब अपाइकली हमसे परफोरेट या फ्रैक्चर हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि हमने केलान को ज्यादातर क्लीन किया हुआ है, तो इन्फेक्शन के चांसेस कम होंगे। जी जी इसी तरह है एग्जैक्टली, सर। क्योंकि कोरोनल अगर जी फ्रैक्चर हो जाता है तो जो रिमेनिंग पूरा पार्ट है नीचे कैनाल का, वो तो बिल्कुल उसमें खाली होगा ना, ठीक है ना? जी सर। तो उसको हम नेगोशिएट तो नहीं कर पाएंगे, ना उसको साफ कर पाएंगे, ना उसको सील कर पाएंगे, क्योंकि कोरोनली ब्लॉक हो गया। जी तो उस वजह से अगर अगर अपिकल ब्लॉक होता है तो रेस्ट ऑफ द केनाल को हम सील भी कर देते हैं, केनाल को साफ भी कर देते हैं, तो चांसेस कम होते हैं। तो ये बिल्कुल लॉजिकल बात है, ठीक है ना? सर, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमसे एक्सीडेंटली अपाइकल पोर्शन में हम्म, फाइल ब्रेक हो जाता है तो हम रिस्क लेते हुए इसको छोड़ देंगे, इस जी ये सही है सर? इस जी तरह करेंगे? जी बिल्कुल ठीक है। जी उसमें देखते हैं क्योंकि जी अपेक्स पे फाइल जब टूटना और उसको निकालना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि अपेक्स पे टूट गया फाइल, और दो हम कोशिश करते हैं, कभी कभी मिडिल पे टूट जाता है तो डिफरेंट उसके हैं कि बाईपास कर देते हैं, फाइल को बाईपास करने की कोशिश करते हैं और या रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, मगर अपेक्स पे तो बाईपास और रिट्रीवर दोनों का काफ़ी मुश्किल होता है, तो ज़ाहिर है हम छोड़ देते हैं और देखते हैं कि पेरिएपिकल स्टेटस क्या है। अगर पेरिएपिकल ऑलरेडी रेडियोलिसेंसी है और पेरिएपिकल पैथोलॉजी है तो नो डाउट थोड़ी सी गार्डेड प्रोग्नोसिस होगी, मगर अगर एपिकल एरिया नॉर्मल है तो मोस्टली सक्सेसफुल होता है। तो डिपेंड के वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उसको और देखते हैं, बिल्कुल हम उसको छोड़ देते हैं। डिसीजन पहले यही होता है कि अपेक्स पे फाइल टूट गई, उसको द रेस्ट ऑफ द कैनाल उसको आप सील कर दें और लेट सी कि क्या होता है, तो चांसेस ज़्यादा होती हैं कि सक्सेसफुल। डिपेंड ये भी होता है कि अपेक्स पे कौन सी फाइल, पहली वाली फाइल टूट गई या आपने प्रिपेयर अपेक्स को किया हुआ है, जैसे आप करते हो कि आप मास्टर एपिकल फाइल जो हम करते हैं कि आप शुरू इनिशियल फाइल, फिर और फाइल, फिर तीसरी फाइल, सर वो तीसरी फाइल टूट गई, तो इसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं कि फेल हो जाए रूट कैनाल। मगर इनिशियल फाइल ही आपकी टूट गई तो फिर अगेन क्योंकि डिब्राइडमेंट सही नहीं हुई, इरिगेशन सही नहीं हुई, अपेक्स क्लोज तो हो गया है मगर अपिकल डिब्राइडमेंट सही नहीं हुई, तो उसमें भी चांसेस कहें कि फेल हो। तो ये बहुत से फैक्टर्स होते हैं कि व्हिच व्हेन इन केस ऑफ द सेपरेशन ऑफ फाइल इनसाइड द कैनाल कि डिसीजन क्या लेना चाहिए। तो डिसीजन ये आपको जब फाइल टूटे तो बाईपास इज कंजर्वेटिव कि आप बाईपास कर दें, और देन नहीं हो रहा तो रिट्रीव करने की कोशिश करें, देन नहीं हो रहा तो छोड़ दें और फिर बाईपास कैसे करें सर? ऑब्जर्वेशन पे रख दें, ठीक है ना? अगर फेल हो रहा है तो फिर अदर सर्जिकल ऑप्शन ट्राई कर दें हम, ठीक है? बाईपास क्या होता है सर? बाईपास क्या होता है? ये हार्ट बाईपास नहीं है, कैनाल बाईपास। कैनाल बाईपास आप
फाइल पड़ी हुई है, एक तरफ उसको करें और दूसरी तरफ से आप निकल जाए, ये पॉसिबल है उसी समटाइम्स। कैनाल को अगर मतलब थोड़ा अवॉइड करें। जी, क्योंकि वाल जो एक्सरे पे तो नजर आता है कि कैनाल ब्लॉक है, मगर मैंने आपको बताया ना, जो एक्सरे पे कैनाल नजर आती है वो ऐसी कैनाल होती नहीं है, अंदर कैनाल काफी डिफरेंट उसकी। तो कैनाल एक साइड पे कभी कभी ये होता है कि फाइल आपकी अटैच होती है और कहीं से स्पेस होता है। तो बहुत स्मॉल फाइल से और जो है, जो आपके जो इनिशियल फाइल्स होते हैं 6 नंबर 8 नंबर या 10 नंबर फाइल से आप उसको, जैसे आप बाईपास करते हो लेज को, लेज बन जाता है ना, बिल्कुल सर। तो लेज को भी तो बाईपास करते हैं ना, कैसे करते हैं? सर आप एक डिस्कशन रखेंगे इस पे, बीएमपी एंड ऑल ऑफ दैट, रूट कैनाल के जो लेटर प्रोसीजर्स एंड कॉम्प्लिकेशंस एंड ऑल। अच्छा चलें ठीक, वो केसेस रख के और दैट उस पे वुड हम डिस्कस, जैसे अभी आज कर रहे थे हम कि डिस्कस, ठीक है। तो लेज को बाईपास करते हैं कि फाइल अगेन जो पाथ फाइल्स होती हैं आपकी 8-10 नंबर, उसको बिल्कुल उसकी टिप को 90 डिग्री पे आप उसको कर देते हैं, कर्व कर देते हैं 90 डिग्री, और फिर उसको आप आहिस्ता आहिस्ता कैनाल में जो है वो ड्राइव करते हैं और फिर बाईपास चांस लेज तो बाईपास हो जाती है इजीली। और इस तरह से ही हम बाईपास करते हैं फाइल को भी, ठीक है ना। तो फाइल भी बाईपास, ये नहीं है कि 100% सक्सेसफुल होता है, मगर हम ट्राई करते हैं बाईपास के। और जो जो थिकनेस ऑफ द जो वो है डायमीटर ऑफ फाइल भी डिपेंड करता है। अगर लार्जर फाइल टूटा हुआ है तो वो बाईपास करना नहीं होता, अगर स्मॉल फाइल टिप है तो वो बाईपास हो जाता है। तो ये बाईपास है, बाईपास में क्योंकि फाइल अंदर होगी मगर स्पेस से आप होगा थोड़ा सा, उससे आप निकलेंगे और रेस्ट ऑफ द कैनाल आप नीचे आपकी नेगोशिएशन हो जाएगी, फाइल अंदर पड़ी हुई होती है। तो ये आप कभी मैं केसेस आपको वो दिखा दूंगा, ठीक है। और ये तो सारी वो सर्जरी की जो भी है आपकी कंट्राइंडिकेशन, जहाँ सर्जरी जो है वो मुमकिन ना हो। लोकल फैक्टर्स की हमने बात की कि यहाँ लोकल फैक्टर मैंडिबुलर एरिया में क्या है, मैक्सिलरी में तो हमने कहा कि साइनस है, inferior alveolar इंफीरियर एल्वियोलर नाव है, मेंटल फोरामेन है, ठीक है ना। पोस्टीरियर एरिया में थिक आपका मैंडिबल की जो थिकनेस है, मैंडिबल हार्ड है, वो उसको रिमूव करना, फिर अपेक्स पे पहुंचना, और इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। साइनस की बात हमने कर दी, ठीक है। स्लैब डिजाइन हॉरिजॉन्टल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सब मार्जिनल, ये आपको सर्जरी वालों ने पढ़ाए होंगे। जी सर। जी सर। यस सर। तो ये सब मार्जिनल यूबिक ऑटसन बीन, ये आता है आपको? नहीं ये नहीं पता। ज्यादातर नहीं यही सर, ये हम एपिसेक्टमी में करते हैं। लोकल एनेस्थीसिया आप देंगे जो लॉन्ग लास्टिंग होगी। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये आप देखें कि लोकल एनेस्थीसिया आपको अमूमन शुड बी एडजेसेंट टीथ को भी देनी पड़ती है, क्योंकि आपको फ्लैप देना पड़ेगा। और ये देखें कि यहाँ अगर मैंडिबुलर मोलर में करनी है हमें, तो लॉन्ग आपको देगा ब्लॉक देने पड़ेंगे, फिर लिंगुअल, फिर बक्कल, अगेन सेम इन एंटीरियर एरिया। तो एडजेसेंट टीथ को भी करना पड़ता है क्योंकि हमें फ्लैप करना पड़ता है। लोकल एनेस्थीसिया देंगे और यहाँ देखें आप, ये आप इंसिशन ऐसी हो कि बिल्कुल ये मैंडिबुलर एरिया, प्रीमोलर एरिया। आपको सिखाया गया होगा सर्जरी में कि जो वर्टिकल इंसिशन को, पेपिला को सेव करने तो बेहतर है, ठीक है ना। तो यहाँ देखें, यहाँ से इंसिशन दे के ऊपर गए हम को सेव द इंटरडेंटल पेपिला। तो बिल्कुल इंटरडेंटल पेपिला के टिप पे इंसिशन यूं वर्टिकल नहीं देना होता, ठीक है। जो ये ट्रायंगुलर शेप है, एक एक
वर्टिकल इंसिशन दी गई है। हॉरिजॉन्टल तो आप जंजाइवल सल्कस से देते थे, और वर्टिकल इंसिशन हम देते हैं टू रिलीज द फ्लेप। अगर एक साइड से हो तो एक कॉर्नर, तो एक साइड तो वो हो जाता है, या टू साइड्स कर लें आप, जैसे यहाँ ये 2 साइड्स हैं, तो ये आपको इंसिशन ये हॉरिजॉन्टल हो गई और लॉन्ग विथ जंजाइवा, मार्जिनल जिंजेवा, और 2 वर्टिकल इंसिशन दी गई है। तो ये बहुत, और देखिए ये रूट अपेक्स आपको नज़र आ रही हैं। समटाइम बोन इतना डैमेज हुआ होता है, ऑलरेडी पर होते हैं कि विंडो बना हुआ होता है। समटाइम्स देयर इज अ बक्कल बोन, तो यू हैव टू रिमूव दैट बक्कल और लेबियल बोन टू एक्सपोज द रूट टिप्स। जो रूट है डेंटिन है, थोड़ी सी ज़्यादा डार्कर येलोइश होती है देन बोन, तो easily you can recognize कि this is the root tip and this is the bone। तो इसको हम आपको ये आप इस तरह से करेंगे। और ये देखिए गॉज दिया गया है कि ब्लीडिंग को रुक जाए, और ब्लीडिंग रुकेगी तो फिर पूरा ये सब मार्जिनल सेमी ल्यूनर होता है कि मार्जिन्स जो जंजाइवल अटैच जंजीवा है उसको आप सेव कर देते हैं, और एक ये सेमी ल्यूनर टाइप इंसिशन देके रिलीज कर देते हैं। मगर ये आजकल इतना यूज नहीं करते। सब मार्जिनल फ्लेप जो है ये आप ये देखें, ये अगर देखें कि अटैच जिंजीवा को सेव किया जाता है, क्योंकि यहाँ देखें ये क्राउन्स लगे हुए हैं। जब हम पूरा यहाँ जंजाइवल सल्कस से इंसिशन देते हैं और पूरा फ्लेप रेज करते हैं, तो उसमें ये जब हम आप इसको सील करते हैं दोबारा स्टिचेस लगा के, तो रिसेशन के चांसेस होते हैं। जंजाइवल जब हील हो जाए रिसीड हो जाता है, और रेस्टोरेशन दी गई है अगर ये वो, तो मार्जिन्स एक्सपोज हो जाती हैं और अनएस्थेटिक थोड़ी सी हीलिंग होती है। तो अटैच जंजीवा और जंजाइवल रिसेशन को रोकने के लिए आप ओवर द अटैच जंजीवा इंसिशन दे दें। देखें अटैच जंजीवा को सेव किया गया है, और जो पैटर्न इसके लूपिंग पैटर्न है उसी से आप इंसिशन दे के 2 वर्टिकल इंसिशन देंगे और फिर फ्लेप रेज करते हैं, तो ये अटैच जंजीवा सेव हो जाता है। तो इससे ये होगा कि जंजाइवल रिसेशन नहीं होता आफ्टर हीलिंग ऑफ जो आपने इंसिशन दी हुई है। ठीक है ना। तो ये इसको हम सब मार्जिनल फ्लेप कहते हैं। यहाँ देखें ये सब मार्जिनल, तो अटैच जंजीवा सेव है, इंसिशन ये यहाँ दिया गया है लाइक दिस, जैसे पैटर्न है जंजीवा का इस तरह से आप ये हॉरिजॉन्टल इंसिशन देंगे और फिर ये रिलीजिंग इंसिशन देंगे। इधर रिलीजेशन देना है तो ये हम देंगे, 2 दे दें, 1 दे दें, और ये प्ले प्रेस करते हैं। ठीक है। तो ये आपका इस तरह से यू कैन देखें यहाँ भी एक तरफ से वन साइडेड है ये, और वन साइड नहीं है ये अटैच जंजीवा इसका बिल्कुल प्रिजर्व्ड है। तो दिस इज द मोस्टली गिवन फॉर एपिसेक्टमी इंसिशन टाइप। ठीक है। तो इसमें अटैच जंजीवा सेव हो जाता है। पैलेटल में अगर पैलेटल रूट की एपिसेक्टमी करनी है तो कौन सी इंसिशन देंगे टू एक्सपोज द पैलेटल रूट? वाई शेप। वाई शेप तो एंटीरियर नहीं देते, वाई शेप इंटीरियर ये आ गया, और ये प्री मोलर है K9 के बीच में एक रिलीजिंग देते हैं, एक यहाँ देंगे, और ये वाई बन गया एंटीरियर में। पोस्टीरियर में अगर ये दांत मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर है, देखें यहाँ हुआ है, और पैलेटल रूट में प्रॉब्लम है, पैलेटल रूट की एपिसेक्टमी करनी है, जो इट्स वेरी डिफिकल्ट क्योंकि साइनस इसमें चांसेस होते हैं कि एक्सपोज हो जाए। मगर अगर आपको बहरहाल साफ करना है इसको, तो इंसिशन कैसे होगी इसकी, यहाँ से कैसे सॉफ्ट टिश्यू रेज करेंगे आप? कोई रिलीजिंग इंसिशन होगी इन पोस्टीरियर पैलेटल एरिया? कहाँ देंगे? प्री मोलर, मोलर एरिया पे नहीं, प्री मोलर पे शायद। पैलेटल एरिया में कहाँ इजाजत है सिर्फ आप रिलीजिंग इंसिशन दे सकते हैं? इंटीरियर पोर्शन में सर। प्रीमोलर। कहाँ पे? Anterior. प्री मोलर में, इंटीरियर में, एग्जैक्ट लोकेशन बताओ ना। प्रीमोलर में सर, प्रीमोलर सेकंड, फर्स्ट, सर K9 और प्रीमोलर के बीच। K9 और प्री मोलर के बीच। यस, K9 और प्री मोलर के बीच में ही इजाजत है बस।
और कहीं रिलीजिंग इंसिशन नहीं देते हम। स्पेशली पोस्टीरियर एरिया आप देखें कि इस ये पोस्टीरियर एरिया से जो आर्टरीज आते हैं, वेसल्स आती हैं जी, करेटर पैलेटाइन वेसल्स नर्व्स, वो दैट इज वेरी डेंजरस कि आपने अगर रिलीजिंग इंसिशन आपने इधर दे दिया इन मोलर एरिया, सेकंड मोलर एरिया, तो वेरी सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इस ये देखें जो ब्लैक लाइन है ये है, यहाँ से देंगे बस। दिस इज द सेफेस्ट एरिया बिटवीन कैनाइन एंड फर्स्ट प्रीमोलर, ठीक है। और अगर बायोलेटरली देंगे तो तब ये एंटीरियरली वाई शेप बन जाता है, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल देंगे यहाँ से पैलेटली, हॉरिजॉन्टल जंजाइवल सल्कस से, और यहाँ से रिलीज कर देंगे, ठीक है ना। ये देखें, ठीक है, देख रहे हैं आप? हाँ एग्जैक्टली। तो हॉरिजॉन्टल दे के आप यहाँ से रिलीज कर देंगे और फिर आप फ्लैप प्रेस कर दें। तो आप देखें ये पैलेटल रूट पूरी एक्सपोज हो गई है। अगर एपिसेक्टमी के अलावा भी सर्जरीज होती हैं, जैसे यहाँ पैरोडोंटल क्यूरेटेज करना है आपने, या कोई पैरोडोंटल आपको रीजनरेटिव प्रोसीजर करना है, तो इस तरह से यू कैन एक्सपोज दैट एरिया, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए आज के, इसमें हमने थोड़ा ये डिस्कस कर लिया इंडिकेशंस और ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो टेक्निक है एपिसेक्टमी की, रेट्रोग्रेड फिलिंग की, वो हम कर लेंगे, ठीक है। और मीनवाइल में देखते हैं कि इस तरह से डिस्कशन क्लासेस ये वो, और क्योंकि 11 जनवरी तक तो जाहिर है बंद है, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स शुरू करेंगे हम। इससे पहले एक वाइवा टाइप रख लेते हैं, ठीक है ना। यस सर। ओके ओके, थैंक यू सर। हाँ सर ये जो हमारे ग्रुप्स के पोस्टिंग थे ना, जो सर जब यूनिवर्सिटी बंद हो गई थी आपने एक टाइम टेबल दिया था कि हर ग्रुप अपने मतलब ऑनलाइन क्लासेस लेगी, जो डिस्कशन के लिए आपने टाइम टेबल दी थी स्केड्यूल। जी जी जी, वो चेंज कर दें। वो तो अभी तक खत्म नहीं हुआ ना सर? सर वो तो वो आपका क्या मतलब, हम जो सर्जरी वालों को टाइम सर ने कितना बताया कि हुआ था आपका मतलब सर्जरी टाइम में? खत्म। आपको टाइम आते हुए कितना हुआ था? 2 हफ्ते हो गए थे। 2 हफ्ते हमने प्रैक्टिकल किया था। तो अभी वही है ना कि आप जब हम रिज्यूम करेंगे तो जाहिर है वहीं से कर लेंगे ना। अब फिलहाल सर क्या मतलब वो है आपका प्लान क्या है? मतलब हमें तो अभी सर्जरी के क्लासेस नहीं ले रहे, वो कह रहे कि आपका टाइम पूरा हो गया ऑनलाइन। चलो मैं देख लेता हूँ, आप शिफ्ट हो जाएं फिर मैं ये सर इसलिए हम तो ये कह रहे हैं कि सर रिज्यूम करे तो बेहतर है, हम इसी तरह डिस्कशन अपने अपने ग्रुप्स में कर रहे हैं। नहीं, वही मतलब सेम जैसे सर्जरी में है, आप तो सर्जरी ही कोई कंटिन्यू करें ना। जी सर। क्योंकि मैं ये इसलिए अभी मैं चेंज कर दूंगा, तो फिर जब हम फिजिकली आप आएंगे तो फिर अभी तो क्योंकि 2 हफ्ते गुजरे हैं, मैं कह रहा हूँ 1-2 हफ्ते और गुजारें उस डिपार्टमेंट में, उसके बिल्कुल बाद सर। फिर दूसरी डिपार्टमेंट में जाएं। तो इसीलिए अभी मैं ऑनलाइन भी चेंज नहीं कर रहे। तो ऑनलाइन अगर चेंज बिल्कुल कर सर। दिए तो फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, फिर जब आप फिजिकली आएंगे तो कौन सी डिपार्टमेंट में जाएं, किस तरह से करें। तो तो इसीलिए चेंज ना करें, एटलीस्ट को कह दें कि हमारे ना कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि हमें सर्जरी वालों ने कहा कि आपका टाइम खत्म हो चुका है, सो दे आर नॉट टेकिंग डिस्कशन क्लासेस। अच्छा चलो, मैं क्योंकि जी अभी सर, तो तो मिड आप टर्म ग्रुप में की एक वजह से मतलब भी थोड़ा टीचर्स सा था कि वो आप सारे ग्रुप वो में सर टीचर्स को इन्फॉर्म करें कि प्लीज कंटिन्यू, तो सर वो हमारे क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं उनको बोल देता हूँ। जी सर। तो इसलिए जब हम 11 थैंक यू से वेरी मच। आएंगे ना, तो 11 से जी जहाँ सर। से आपने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर लेंगे फिजिकल जो है ना। मगर फिर आपको पूरा तो टाइम नहीं दे पाएंगे हम, 2-2 हफ्ते अगर मजीद उसको कर लिया फिर उसके बाद चेंज कर लेंगे। और आपका ये है कि आपका थोड़ा सा टाइम इसलिए भी है कि हाउस जॉब भी देर से शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा टाइम आप लोगों के लिए है। वैसे तो जाहिर है अभी डिग्री आपको 2021 में ही मिलेगी, ठीक है ना। तो अगर मार्च में नहीं मिली, अगर आपको आगे मई जून में मिल गई तो अभी इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये आपकी जो असेंशियल जो मैंडेटरी चीजें हैं वो थोड़ी कवर हो जाएं तो बेहतर है इसमें, ठीक है ना। सर एग्जाम कब तक होंगे? सर अभी एग्जाम्स का मैं देख लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ा इस पे ये किया है कि हम जनवरी से एनी हाउ अगर कंटिन्यू गवर्नमेंट करती है
क्योंकि HAC से ने हमें कहा है कि अगर आप ज़रूरी समझते हैं तो आप थोड़ा थोड़े ग्रुप्स बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू भी कर लेती है तो हम थोड़े थोड़े ग्रुप्स बुला के और उसको हम फाइनल ईयर दूसरे तो एग्जाम में जा रहे हैं, फाइनल ईयर को हम थोड़े थोड़े ग्रुप्स में बुला के हम प्रैक्टिकल करवा दें। तो वो एक टाइम टेबल मैं बना लेता हूँ, उसके बाद थोड़ा टाइम दे के आपका एग्जाम का शेड्यूल भी दे देते हैं। बाकी फर्स्ट ईयर टू थर्ड ईयर तो शेड्यूल हम दे अभी आ जाएगा कमिंग वीक में, Yes. ठीक है। ओके सर। जी Yes, sir. सर। ओके, Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मैं